Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online classes of Noor School and College Mansehra. Dear student, before starting our today lecture, I would like to ask a few questions. My first question is, what are the fundamental particles of an atom? Electrons, protons and neutrons are the fundamental particles of an atom. My second question is, student, where electrons, protons and neutrons are present in atom? Electron revolves around the nucleus in the orbit, while protons and neutrons are present in the center of atom called nucleus. My third question is, why the energy of L shell is high as compared to K shell? According to Bohr atomic model theory, K shell is very close to the nucleus as compared to L shell, so the energy of K shell is lower than L shell. My last question is, student, what is electronic configuration? The distribution of electrons into shell and subshell is called electronic configuration. Now student, come to the today lecture. Our today lecture is about fundamental particle of an atom. As we discussed that electrons, protons and neutrons are called fundamental particle of an atom. Why electrons, protons and neutrons are called fundamental particle of an atom? The reason is that the chemical and physical properties of an atom depend upon these particles, so that's why these are called fundamental particle of an atom. जैसा कि स्टूडेंट हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को फंडामेंटल पार्टिकल बोला जाता है। इसकी रीज़न ये है कि किसी भी एटम की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो इन्हीं पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, इसलिए इनको फंडामेंटल पार्टिकल्स बोला जाता है। इसके अलावा भी एटम्स के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, लेकिन उनके ऊपर एटम्स की केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड नहीं करती, इसलिए उनको फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं बोला जाता। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन इज़ अ फंडामेंटल पार्टिकल, सो नाउ डिस्कस द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रॉन इज़ अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ओके, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से। अगर हम इसके मास की बात करें, इसका मास 0.000548597 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। और 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है स्टूडेंट, ये आपको मैंने रिलेटिव एटॉमिक मास वाले टॉपिक्स के अंदर डिटेल से समझा दिया था। बहरहाल 1 एटॉमिक मास यूनिट इज द 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम। अगर हम इसके मास की बात करें किलोग्राम में, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.11 × 10⁻³ किलोग्राम। एक और इम्पोर्टेंट सवाल स्टूडेंट यहाँ पे, 1 AMU इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम? 1 AMU is equal to 1.67 × 10⁻⁻27 kilogram. Okay, so this is the two properties of electron. First, it is negative charge particle. Secondly, its mass in AMU is this one, and in kilogram its mass is this one. Now come to the
third properties of electron. What are the charge on electron? Its charge is equal to 1.6022 into 10 raised to power minus 19 coulomb, and it is represented by negative sign. Electrons are very light small particle due to which they revolve around the nucleus in orbit. Now similarly come to the properties of protons. Proton is positively charged particle. It carry positive charge and its mass in AMU is 1.0072766 atomic mass unit, and its mass in kilogram is 1.6726 into 10 raised to power minus 27 kilogram. It's mean that proton is much heavier than electron, and proton charge is equal to 1.6002 into 10 raised to power minus 19 कूलम. अगर स्टूडेंट हम चार्ज की बात करें तो चार्ज जितना प्रोटॉन के ऊपर होता है उतना इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है. चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जस्ट साइन अपोजिट होते हैं. प्रोटॉन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, बाकी चार्ज की वैल्यू इक्वल होती है. नोट दिस पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में अगर हम कंपैरिजन करें तो इलेक्ट्रॉन्स से प्रोटॉन 1837 टाइम्स भारी होता है और प्रोटॉन हमेशा न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं. इसी तरह न्यूट्रॉन is a neutral particle and it have no charge. न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता. अगर हम इसके मास की बात करें तो AMU में इसका मास 1.0086654 के इक्वल होता है, और अगर हम इसकी मास किलोग्राम में बात करें तो 1.6749 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 27 किलोग्राम. अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंपेयर करें तो हमारे पास प्रोटॉन से न्यूट्रॉन स्लाइटली भारी होता है. ओके, ऑलमोस्ट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के मास को इक्वली लिया जाता है क्योंकि ये इससे थोड़ा बहुत भारी होता है. जैसा कि हमने देखा स्टूडेंट कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम हेवियर है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रॉन 1842 टाइम्स भारी होता है, और ये भी हमारे पास एटम के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है. डियर स्टूडेंट, आपने इसको याद कैसे करना है? इलेक्ट्रॉन्स के मास को याद करना है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जस्ट मासेस को याद रखना है, और इनके ऊपर चार्ज की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज की वैल्यू इक्वल होती है, जस्ट साइन डिफरेंट होते हैं. और इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का होता है, प्रोटॉन उससे 1837 टाइम हेवियर होता है और न्यूट्रॉन 1842 टाइम्स हेवियर होता है इलेक्ट्रॉन से. तो ये थे स्टूडेंट हमारे पास कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़. आगे चलते हैं स्टूडेंट हमारे नेक्स्ट मेन टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन का मतलब इलेक्ट्रॉनों की तकसीम शेल सब शेल के अंदर. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ electrons around the nucleus in an in orbit or shell is called electronic configuration. Dear student, जैसा कि हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा
शेल्स के अंदर या ऑर्बिट्स के अंदर या एनर्जी लेवल जिसको हम बोलते हैं, इसके अंदर रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल के अंदर कितने होते हैं, दूसरे शेल के अंदर कितने होते हैं, तीसरे के अंदर कितने होते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट करवाना एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। एक्सप्लेनेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हमें शेल्स के नाम पता होने चाहिए। जैसा कि स्टूडेंट बोहर साहब ने हमें ये बताया कि पहले शेल को हमेशा आपने के से रिप्रेजेंट करना है, सेकंड को एल से, थर्ड को एम से, फोर्थ को एन से, फिफ्थ को ओ पी क्यू एंड सो ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखा कि शेल आर रिप्रेजेंटेड बाय अल्फ़ाबेट्स and alphabets are started from K, L, M, N, O, P, Q, R and so on. K is used for first shell, L is used for second, M is used for third, N is for fourth and so on. Now student, how much electron are present in K shell, how much electron are present in L shell and how much electron are present in fifth shell, sixth shell and seventh shell. For that purpose, we used a formula that is 2n square. इलेक्ट्रॉनों को शेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करवाने के लिए हम एक फार्मूला को याद रखेंगे जो कि है 2n स्क्वायर। n की वैल्यू हम शेल के हिसाब से पुट करेंगे स्टूडेंट। अगर हमारे पास शेल है पहला तो यहाँ n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। अगर 2 है, सेकंड शेल की बात कर रहे हैं तो 2 पुट करेंगे। अगर थर्ड शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है तो 3 पुट करेंगे। इसी तरह फोर्थ के अंदर 4 पुट करेंगे। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये समझाया कि इलेक्ट्रॉनों को शेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। फिर स्टूडेंट मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में ये बताया कि शेल को अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। पहले शेल के लिए के, सेकंड के लिए एल, थर्ड के लिए एम, इसी तरह अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं। थर्ड मैंने आपको बताया कि इनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसको फाइंड करने के लिए हम इस फार्मूला को यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं कि पहले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे के अंदर, थर्ड के अंदर, फोर्थ के अंदर एंड फिफ्थ के अंदर। डियर स्टूडेंट, पहला शेल नंबर ऑफ ऑर्बिट्स की बात कर रहे हैं। पहला ऑर्बिट जिसका नेम ऑफ ऑर्बिट हमारे पास क्या है, के शेल। फार्मूला यूज़ करेंगे 2n स्क्वायर, 2 फार्मूले वाला। n की जगह हम n कौन सा शेल है, पहला ऑर्बिट है तो 1 पुट करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 और 2 1s are 2। इट्स मीन दैट k शेल कैन accommodate only 2 electrons। इसी तरह सेकंड शेल की बात करेंगे तो सेकंड शेल का नाम होता है L। 2n स्क्वायर फार्मूला में अगर हम L शेल के लिए n की वैल्यू 2 होती है, 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 2s are 8 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह थर्ड शेल को रिप्रेजेंट करते हैं m से, और m की वैल्यू हमारे पास 3 होती है। 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18 एंड फोर्थ के लिए हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपने किसी भी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हो तो आप 2n स्क्वायर फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको किसी भी नंबर ऑफ शेल के इलेक्ट्रॉन अगर पूछे जाएं तो आप इजीली इस फार्मूला को यूज़ करके बता सकते हैं। एक बात याद रखनी है स्टूडेंट, अप टू 4 शेल हमारे पास ये फार्मूला वैलिड होता है एंड आफ्टर 4th शेल ये वाला फार्मूला फेल हो जाता है और उसके ऑनवर्ड हम इसको यूज़ नहीं करते।
सिंपल पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर 8, तीसरे के अंदर 18, फोर्थ के अंदर 32, फिफ्थ के अंदर भी 32, सिक्स के अंदर भी 32 और 7 के अंदर भी 32, 8 के अंदर भी 32, 9 के अंदर भी इसी तरह आगे चलते जाएंगे। मतलब फोर्थ तक 32 और फोर्थ के बाद जितने भी आएंगे हम 32 ही पुट करेंगे। इसकी रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद स्टूडेंट हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ सब शेल या एस एंड पी सब शेल। अभी तक तो स्टूडेंट हम यही पढ़ रहे हैं कि हमारे पास शेल होते हैं जिसको डिनोट करते हैं KLMNOPQR, इसी तरह अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। और ये भी देखा कि पहले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे के अंदर कितने, थर्ड के अंदर कितने और फोर्थ के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब स्टूडेंट ये सब शेल वाला कंसेप्ट समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, हमारे पास डी स्टूडेंट मैं आपको एक छोटी सी डायग्राम बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास ये एक सर्कुलर पाथ है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। ये हमारे पास सेकंड शेल है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमें रिवॉल्व करता दिखाई देता है। लेट्स सपोज, अज्यूम करें आप इसको। इस सेकंड शेल के अंदर स्टूडेंट हमारे पास कुछ छोटे रास्ते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको यूं बनाता हूँ। इस सेकंड शेल के अंदर पहला रास्ता ये, सेकंड इस तरह से और थर्ड इस तरह से। तो मैं कहता हूं कि पहले शेल के अंदर कोई ऐसा रास्ता नहीं था। सेकंड शेल के अंदर मैंने देखा कि 3 रास्ते थे। एक यूं जा रहा था, एक न्यूक्लियस के यूं जा रहा था और एक यूं जा रहा था। मतलब एक एक्स एक्सिस पे जा रहा था, एक वाई पे और एक जेड एक्सिस पे जा रहा था। तो मैं कहता हूं ये तो सेकंड शेल था। शेल के अंदर छोटे रास्ते थे जिसको हम बोलेंगे सब शेल। शेल एंड दिस इज 3 सब शेल। फर्स्ट सब शेल, सेकंड सब शेल, थर्ड सब शेल। ओके, तो अब इसी कंसेप्ट को हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसा कि शेल को हमने डिफाइन किया था, अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इज कॉल्ड शेल ऑर्बिट और एनर्जी लेवल। शेल या ऑर्बिट हमारे पास वो जगह है जहाँ पे न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। और शेल को, हर शेल की याद रखिएगा फिक्स्ड एनर्जी होती है। एंड ईच शेल इज डिस्क्राइब बाय एन वैल्यू। हर शेल के लिए एन का वर्ड यूज करते हैं। एन मीन कोई भी हो सकता है। एन की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। पहला शेल है तो 1, सेकंड है तो 2, फोर्थ है तो 4। याद रखिएगा एन की वैल्यू जितनी इंक्रीज होगी शेल नंबर भी उतना ही बढ़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर एन की वैल्यू है 1 तो शेल नंबर होगा 1। अगर एन की वैल्यू है 4 तो शेल नंबर भी 4 होगा। शेल नंबर भी इंक्रीज होगा। और याद रखिएगा स्टूडेंट, शेल नंबर जितना इंक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से वो भी उतना ही बढ़ेगा। जितना एन की वैल्यू कम होगी शेल नंबर कम होगा, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस कम होगा। अगर वैल्यू ज़्यादा होगी तो डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। आई होप दिस सिंपल concept you better understand. Next is सब शेल। जैसा कि स्टूडेंट अभी मैंने आपको डायग्राम से समझाया कि शेल्स के अंदर एक छोटे छोटे रास्ते होते हैं जिन रास्तों को हम बोलते हैं सब शेल। शेल के अंदर फर्दर छोटे छोटे रास्ते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं।
उन रास्तों को स्टूडेंट हम बोलते हैं सब शेल। अ शेल और एनर्जी लेवल इज डिवाइडेड इनटू सब शेल और सब एनर्जी लेवल। याद रखिएगा, उन छोटे रास्ते को या सब एनर्जी लेवल कहते हैं या सब शेल बोलते हैं। अगर हम सब शेल की बात करें स्टूडेंट, तो ये हमारे पास 4 किस्म के होते हैं। इनकी नंबर्स हमारे पास होते हैं 4 और इसको रिप्रेजेंट करते हैं जैसा कि शेल को स्टूडेंट हम रिप्रेजेंट करते हैं KLMN, इसी तरह सब शेल को रिप्रेजेंट करते हैं SPDF। मैंने बताया आपके पास 4 होते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं SPDF। डी स्टूडेंट, आज के लेक्चर के आखिरी मेन पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। कल इंशाल्लाह हम शेल, सब शेल की शेप्स वगैरह को भी डिस्कस करेंगे। अभी तक स्टूडेंट मैंने आपको शेल समझाया, सब शेल समझाया। सब शेल 4 किस्म के होते हैं और उनके नाम SPDF या रिप्रेजेंटेशन इसकी है SPDF। इंशाल्लाह स्टूडेंट, आज के वीडियो का टाइम ज़्यादा होने की वजह से इंशाल्लाह हम इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इनकी शेप को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल से देखेंगे। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर को हम रिवाइज करते हैं। डी स्टूडेंट, the first main points of today lecture is properties of electron. The first properties of electron is it has negative charge particle and its charge is equal to 1.6022 into 10 raised to the power minus 19 coulomb, and its mass is equal to 9.11 into 10 raised to power minus 31 kg, and it revolves around the nucleus. Similarly, proton carry positive charge and its charge is equal to that of electron, but its sign is opposite. Its mass is 1.6726 into 10 raised to power minus 26 kilogram. Similarly, neutron carry no charge and its mass is equal to 1.6749 into 10 raised to power minus 27 kilogram. And note one main point, that proton is 1837 times heavier than electron and neutron is 1842 times heavier than electron. Next we discuss about the definition of electronic configuration. Distribution of electron into shell and subshell is called electronic configuration. And the fifth main point is how much electron contain in an orbit. By using 2n square formula, we can easily determine the number of electron in any orbit. And point number 6 is what is shell and subshell. The fixed circular path around the nucleus where electron revolve is called shell, while shell is divided into subshell. While shell is divided into subpath, that is called subshell or sub-energy level. And the last main point of today's lecture is student, number of electron in subshell. S contain 2 electron, P contain 6 electron, D contain 10 electron, and F contain 14 electron. And the number of orbitals we have not discussed in this lecture. Now student, we discuss the number of orbital in the next lecture. And student, your homework is that write down the whole lecture in your worksheet. Thank you. Allah Hafiz.